الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے توڑ کر سلسلہ سیاست کے فصوں کو ہم نے قرآن و شریعت سے محبت کی ہے
وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ ادھر سے شور آ رہا ہے۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جو وہ منہ سے بولتے قرآن وہ تقریر ہے۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک، رخ مجتبیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک، رخ والضحیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک، رخ والدجیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک، رخ خیر الورا کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک، ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ میرے واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، عمائدین علاقہ، معززین شہر، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستوں، آج 17 فروری سن 2019 کو آپ حضرات کے اس معروف شہر احمد پور سیال ضلع جنگ میں برادر مکرم، عالم بعمل، ہر دل عزیز شخصیت حضرت مولانا سید محمود علی شاہ صاحب اور برادر مکرم سید فخر الحسن شاہ صاحب کی دعوت پر برادر مکرم پیکر اخلاص و سادگی شاہین جمعیت جناب ملک عبدالرزاق صاحب امیر ضلع جھنگ کی وساطت سے حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے، اور مجھے بتایا گیا کہ آج ہی کے دن 17 فروری سن 2012 کو اس معصوم بچے جس نے ابھی آپ کے سامنے اپنے حفظ قرآن کی تکمیل کی، ان کے والد محترم، والد مرحوم و مغفور حضرت مولانا سید قمر الحسن شاہ صاحب کی وفات ہوئی تھی۔ تو عجیب اتفاق ہے کہ جس 17 فروری کو اس بچے کا صاحبان اٹھا تھا، اسی 17 فروری کو اللہ نے پورا قرآن اسے عطا کر دیا۔ میرے دوستو، وقت مختصر ہے، میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کا نہ عادی ہوں نہ کرتا ہوں، اور نہ ہی میرا مزاج ہے کہ میں تھکا دینے والی، اکتا دینے والی، بھگا دینے والی، سلا دینے والی، رلا دینے والی، گھما دینے والی تقریر میں کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ کوشش کرتا ہوں کم بولوں پر کام کا بولوں۔ جن کو اللہ نے مفت زمان دی ہو وہ کہے سبحان اللہ۔ یہ جتنے بیٹری اور سولر والے بیٹھے ہیں ان کو چھٹی ہے، وہ نہ کہیں۔ جن کو اللہ نے مفت بغیر سیلوں کے چلنے والی زبان دی ہے نا، وہ اللہ کا نام گونج کے لیں سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے نخرے باز مجمع اچھا نہیں لگتا، وی آئی پی یا وی آئی پی مجمع اچھا نہیں لگتا، میں خود ماشاءاللہ وی آئی پی ہوں، اس لیے مجھے ہر دفعہ آپ کو جگانا نہ پڑے۔ میرے ذوق خطابت سے آپ اچھی طرح آشنا ہیں، میں پچھلے 2-4 سالوں میں بہت دفعہ آ چکا ہوں احمد پور سیال میں، ہر دفعہ نہ مجھے کہنا پڑے کہ بازوق آدمی ہوں اور بازوق مجمع چاہتا ہوں۔ اس لیے اگر آپ مجھے سننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے چہروں پر کوئی تھکاوٹ، کوئی اکتاہٹ، کوئی گھبراہٹ، کوئی مرجھاہٹ وہ نظر نہ آئے، بلکہ اتنا کھل کے اور کھل کے بیٹھے کہ تمہاری جبینوں پر ستاروں کی جگمگاہٹ نظر آئے۔ اگر آپ خندہ پیشانی سے، شرح صدر سے، چمکتی دمکتی آنکھوں سے اور مہکتی چہکتی جبینوں سے میرے سامنے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ
मैं भी कोशिश करूंगा कि आज कुरान के समंदर में तुम्हें ऐसी सैर कराऊं कि तुम्हारी झोली हीरों से भर दूं। लेकिन मेरा मिजाज है कि मैं बोलते मजमे से बोलता हूँ, गूंगे मजमे से मैं बोल नहीं सकता, इसलिए मेरे साथ आप बोलते रहना। मैं खामखा की वो आपको सदा या वो नहीं कहता कि बस धाड़ धाड़ हो गए, नहीं, जो मेरे दिल की बात तुम्हारे दिल को टच करे ना और तुम्हारे दिल के दरवाजे की कुंडी खटखटाए तो फिर कुंडी खोल के गूंज के कह देना सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, एक दफा ओ पीछे तक आखिरी बंदे तक गूंज के कहो सुभान अल्लाह। ये तुम्हारा जमूद तो टूटे जरा, मैं तो जमूद वाला नहीं हूँ, मैं तो उसका कायल हूँ कि अल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। इसलिए मेरे साथ जरा खिलखिला के मुस्करा के बैठो ताकि मैं थोड़ी देर में भी तुम्हें अल्लाह के कुरान की ऐसी सैर कराऊं कि तुम्हारा दिल और दिमाग उसके हीरों और मोतियों से भर जाए। मेरे दोस्तों, पूरी तवज्जो चाहूंगा बिना तमहीद के। और मैं अक्सर कहा करता हूं कि 1986 से मैंने खताबत शुरू की थी, आज 2019 है, मुझे 33 बरस हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज तक मैं चैलेंज करके कहा करता हूं, मेरी कोई तकरीर, कोई कैसेट, कोई सीडी उठा लो, ऑडियो वीडियो, मैंने कभी अवाम का वक्त ज़ाय नहीं किया। मैंने कभी तकरीर में लतीफ़े या चुटकुले नहीं सुनाए। मैं तो अपने धुन के मिजाज का आदमी हूँ, अपने मौजूद सुखन के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ, फिर उस समंदर में गोते खाता हूँ, बड़ी गहराई तक जाता हूँ, हीरे और मोती उठाता हूँ, तुम्हारे दामन में सजाता हूँ, देवबंद का अकीदा बताता हूँ। इसलिए मुझे सामने भी चाहिए वो जो फूल चुनने वाले बैठे हैं। हाँ, कोई थके टूटे फूटे चेहरे मुझे नहीं चाहिए। अल्लाह ने इंसान को खूबसूरत बनाया है तो खूबसूरत बन के बैठो, खिलखिला के बैठो, मुस्करा के बैठो, ताकि मेरी थकावट उतरे कि मैं लंबा सफर करके आया हूँ, मुझसे ज्यादा तो ये थके हुए हैं। ऐसा ना हो। तवज्जो है, जिन किया कह दो सुभान। मेरे दोस्तों, तवज्जो रहे, बिला तमहीद के मौजूद सुखन को शुरू करना चाहता हूं इन जुमलों से कि कायनात के रब ने इस रूए जमीन पर नबी 1,24,000 भेजे। रूए जमीन पर अल्लाह ने पैगंबर, रसूल, मुरसलीन, अंबिया 1,24,000 भेजे। लेकिन सारी कायनात के नबियों का इमाम सिर्फ हमें अता फरमाया। फिर इसी तरह अल्लाह ने रोजे हर उम्मत को दिए। रिपीट कम करो। अल्लाह ने रोजे हर उम्मत को दिए। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ये मिन क़ब्लिकुम का जुमला लफ्ज इशारा करता है कि रोजे सिर्फ हमें नहीं मिले। रोजे तो जनाबे आदम अलैहिस्सलाम के अय्याम 20 के रोजों से लेकर जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के 1 माह के रोजों तक हर उम्मत को मिले। लेकिन फर्क रखा कि रोजे सबको दिए, मगर रहमतों का समंदर रमजान सिर्फ हमें अता फरमाया। फिर बिल्कुल उसी तरह अल्लाह ने किताबें हर उम्मत को अता की। 1,24,000 उम्मतों में से अल्लाह ने 123 सहीफे नाज़िल किए। बाद रिवायात के मुताबिक 115, 118 में ताद्दद और उस बहस में नहीं जाता, मगर उन 123 सहीफों में अल्लाह ने सारी कायनात की किताबों का सरदार कुरान सिर्फ हमें अता फरमाया। आओ उस कुरान के समंदर की लहरों पे तैरते हैं और रब्बे कौनैन की उस किताब का तारुफ उसकी किताब से लेते हैं। कायनात के रब ने जब उस किताब का तारुफ कराया तो रब्बे कायनात ने बड़ा जामे माने, बड़ा मुख्तसर समंदर को मुट्ठी में बंद करते हुए, पूरी तवज्जो चाहूंगा, समंदर को मुट्ठी में बंद करते हुए कायनात के रब ने अपनी किताब के तारुफ में सिर्फ 3 हर्फ कहे, 2 जुमले कहे। 3 हर्फ, 2 आवाज नहीं आई, 2 जुमले कहे। थोड़ा खिल के खुल के बैठना होगा। अल्लाह ने 3 हरूफ, 2 जुमले। हरूफ कौन से? फरमाया अलिफ लाम मीम। जुमले कौन से? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, एक जुमला, हुदल लिल मुत्तकीन, दूसरा जुमला,
पूरी कायनात में अल्लाह ने पूरे कुरान का खुलासा इन 2 जुमलों में बता दिया। पहला कि ये ज़ालिकल किताबो ला रैब फी, ये लारैब है, ये बेऐब है, ये शक व शुबा से पाक है, ये महमो गुमान तरद्दुद रायबा शायबा और मिर्या से भी पाक है। और दूसरा जुमला, उसकी आमद का मकसद, उसके भेजने का मकसद कि हुदल्लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन की हिदायत का समंदर है, जो भी आता है होता खाता है पाक हो जाता है। अब आओ रब्बे कौनैन की दरबार में दस्ते सवाल दराज करते हैं। अल्लाह आपने इस किताब का जो तारुफ कराया, 3 हुरूफ कहे, 2 जुमले कहे, अलिफ लाम मीम। अल्लाह ये अलिफ लाम मीम क्या है, ये हुरूफ मुक़त्तआत क्या है? तो अक्सर उलमा, मुफस्सिरीन, मुर्रिखीन, मुदक्किकीन, मुहक्किकीन, मुदर्रिसीन, शयूख़ुत तफ़ासीर लिखते हैं कि अल्लाह आलम, अल्लाह जानता है कि इन हुरूफ मुक़त्तआत का माना क्या है, इनका मतलब क्या है, इनकी वजाहत क्या है, इसकी तफसील और तशरीह और ट्रांसलेशन क्या है। लेकिन कुछ लोगों ने अपनी आइडियाज, अपनी विजदानी कैफियत का इजहार और तसव्वुर और तखय्युल पेश किया कि कायनात के रब ने ये जो सूरह बकरा के शुरू में 3 हरफ कहे, ये आम हरफ नहीं है, ये पूरी कायनात के खुलासे में है, ये आम हरफ नहीं है। अलिफ लाम मीम, कायनात के रब ने इन 3 हुरूफ को जो लिखा है, ये सिर्फ हरफ नहीं बल्कि ये 3 कसमें हैं। अलिफ में अल्लाह ने कसम उठाई, लाम में अल्लाह ने कसम उठाई, मीम में अल्लाह ने कसम उठाई। अल्लाह कौन सी? फरमाया अलिफ मुझे अपनी उलूहियत की कसम, लाम मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, मीम मुझे मोहम्मद की अजमत की कसम। अल्लाह आपने ये कस्में क्यों उठाई? आपने ये कस्में अपनी जिब्रील की, मोहम्मद की ये क्यों उठाई? कस्में तो और भी कुरान में उठाई, लेकिन ये नहीं थी। कहीं जमीन की कसम, कहीं जमान की कसम, कहीं मकीन की कसम, कहीं मकान की कसम, कहीं सूरज की कसम, कहीं चांद की कसम, कहीं वक्त चाक की कसम, कहीं शहर की कसम, कहीं जमाने की कसम, कहीं गलियों की कसम, कहीं किसी की कसम। लेकिन यहाँ पर वो कस्में नहीं बल्कि अपनी कसम, जिब्रील की कसम, मोहम्मद की कसम। अल्लाह वजह क्या है? फरमाया इसलिए कि मैंने ये कस्में उठाई बड़ी अहम बात के लिए। अगर मैं बगैर कसम से कहता फिर भी तुम यकीन करते, लेकिन बात चूंकि बड़ी अहम थी, मैंने इसलिए कस्में उठाकर कहा। कसम भी नहीं, कस्में उठाकर कहा। ख्याल करना, 14वीं सदी का कोई चूड़ा, 14वीं सदी का कोई मरासी, 14वीं सदी का कोई काला, 14वीं सदी का कोई लांती, 14वीं सदी का कोई सिंधी अगर तुम्हें ये धोखा देने लगे कि ये कुरान सच्चा नहीं, ये कुरान झूठा है, ये कुरान शराबखोर खुलफा का लिखा है, तो उसके मुंह पे तमाचा मार के कहना मैं तेरी बात मानूं या रब की बात मानूं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान कुरान, अज़मत कुरान, शान उलमाए देवबंद, सर बकफ सर बुलंद, सर बकफ सर बुलंद, हजरत मौलाना मोहम्मद याह्या अब्बासी साहब। मेरे नारे नहीं लगाओ, मैं जिंदाबाद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करम है, माहौल अभी तक गर्म है। हाँ भाई, इनको जिंदा करो कि 2-2 प्याले चाय पिलाओ, ये थोड़ा नखरे में बैठे हैं। हाँ, और मैं ऐसे मजमे से मैंने शुरू में कहा नारा लगाओ तो ऐसा लगाओ पता चले ना कहीं तक आवाज तो जाए कि कोई बोल रहा है। ये क्या हो कोकड़ाली कुकेड़ाली कर का हाँ? ये नारा होता है। जंग जिले के तो ऐसे नारे नहीं होते। लगाओ एक दफा नारा मौलाना, मैं देखता हूं। नारे तकबीर, शान मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, अज़मत कुरान, शान उलमाए देवबंद, नारे तकबीर। जैसे तुम चाहते हो ना मौलाना आज ऐसा बयान करे बाजी मजा आ जाए, मौलाना भी चाहते हैं ऐसे बुखार लेके बैठे मुझे भी मजा आ जाए। हाँ, ऐसे नारे का जवाब दे कि मुझे भी देख के मजा आ जाए। मजा तो तब है ना कि दोनों तरफ आग बराबर लगी। तुम मुकर्रिर को चूसते हो, नात खान को चूसते हो, शेखुल हदीस को चूसते हो, उसको अर्क में दर्द कर देते हो, पसीने में लथपथ कर देते हो, खून में जिगर वो दे देता है, तुम हिलते ही नहीं। और मैं सबकी कसरें मैं निकालता हूँ। तवज्जो है, जिनकी है कह दो गूंज के सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों तवज्जो करो, कायनात के रब ने कहा अलिफ लाम मीम। मैंने तो अभी तकरीर शुरू ही नहीं की, मैं तो गली में हूँ, अभी तो मैं छोटे रोड पे भी नहीं आया, मैंने मोटरवे तक जाना है। तुम अभी से थक गए। हाँ, तवज्जो रहे, अलिफ लाम मीम। अल्लाह आपने ये कस्में क्यों उठाई? तो कायनात के रब ने कहा इसलिए कि 14वीं सदी में कोई तुम्हें धोखा न दे। मैं बगैर कसम के भी बात करता फिर भी तुम मानते, लेकिन मैंने कसम नहीं उठाई, मैंने 3 कस्में उठाई। ख्याल करना,
किसी चूड़े के फरेब में मत आना। अलिफ मुझे अपनी कसम, लाम मुझे जिब्रील की कसम, मीम मुझे मोहम्मद की कसम। अल्लाह ये कस्में क्यों उठाई और क्यों नहीं उठाई? फरमाया इसलिए कि कस्में उठा रहा था कुरान की सदाकत के लिए, तो मैंने कस्में भी उनके उठाई जिनका ताल्लुक कुरान से था। इसको भेजने वाला मैं था। अलिफ में अपनी कसम उठाई, इसको लेके आने वाला जिब्रील था। लाम में जिब्रील की कसम उठाई, इसको लेने वाला मोहम्मद था। मीम में मोहम्मद की कसम उठाई। मैंने 3 कस्में उठाकर ये ऐलान किया, अलिफ मुझे अपनी उलूहियत की कसम, लाम मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, मीम मुझे मोहम्मद की अज़मत की कसम। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये किताब ला रैब है, बेऐब है, शक व शुबा वहम गुमान तरद्दुद राइबा शाइबा मिर्या से भी पाक है। जैसे मैं सच्चा वैसे मेरी किताब सच्ची, जैसे जिब्रील सच्चा वैसे ये किताब सच्ची, जैसे मोहम्मद सच्चा वैसे ये किताब सच्ची। जैसे हम में शक नहीं वैसे इसमें शक नहीं। जो हम में शक करे वो भी हमारा नहीं, जो हमारी किताब में शक करे वो भी हमारा। तकबीर, शान मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, शान कुरान, अज़मत कुरान, नारे तकबीर। मेरे दोस्तों तवज्जो रहे, बात को मुख्तसर करके वाइंड अप करता हूँ, कश्ती किनारे लाता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत सारी लहरों पे तैराना है। तवज्जो रहे, आगे चलते हैं। या अल्लाह बात समझ आ गई कि आपने 3 कस्में उठाकर इस कुरान की सदाकत, दयानत, अदालत और इस कुरान की हकीकत और इसकी हक्कानियत को वाज़े कर दिया, आश्कारा कर दिया, पर्दा चाक कर दिया कि पूरी कायनात शुरू कर दे तो एक की भी ना सुनना, मेरी कस्मों पे यकीन करना। मैंने कस्में उठा कर कहा ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। अब आगे चलता हूँ। दूसरा सवाल मेरा उन्वान होता है, अक्सर मैं अल्लामा इकबाल के शिकवा जवाब शिकवा की तर्ज पे गुफ्तगू करता हूँ। आओ रब्बे कौनैन की दरबार में फिर दस्ते सवाल दराज करते हैं। अल्लाह ये बात तो समझ आ गई कि अलिफ लाम मीम में आपने ये कस्में क्यों उठाई, लेकिन एक सवाल और भी है कि आपने आगे जो कहा ज़ालिकल, पूरी तवज्जो अहले इल्म, अहले ज़ौक़, अहले फ़िक्र, अहले नज़र, अहले उमुक़, अहले दिल से तवज्जो चाहूंगा। मैं खाली लफ़ाज़ी नहीं करता, मैं काफिया रदीफ नहीं करता, मैं खताबत की शायरी या तख़य्युल की शायरी नहीं करता। अगर अहले दिल, अहले नजर गौर करेंगे, मेरे एक एक जुमले में किसी आयत या हदीस का टच मिलेगा, मेरे एक एक जुमले में किसी रिवायत या तारीख का तुम्हें टच मिलेगा। मैं खामखा अशार या तुकबंदी नहीं करता। पूरी तवज्जो रहे, रब्बे कौनैन की दरबार में दस्ते सवाल दराज करते हैं। अल्लाह वो तो समझ आ गया आपने ये 3 कस्में क्यों उठाई, लेकिन कस्में उठाने के बाद जब आपने कुरान की सदाकत का ऐलान किया कि ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये किताब ला रैब है, बेऐब है, शक व शुबा से पाक है। अल्लाह आपने ज़ालिकल किताब क्यों कहा? हालांकि मैंने तो जब कुरान का मुताला किया, जहां भी इसका जिक्र आया, अल्लाह ने अक्सर लफ्ज़ कुरान इस्तेमाल किया। यासीन वल कुरानिल हकीम, अर्रहमान अल्लमल कुरान, इन्न हाज़ल कुरान शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान बल हुवा कुरानुम मजीद। हर जगह कुरान 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 कुरान। अल्लाह आपने यहाँ ज़ालिकल कुरानुल ला रैब फ़ीह क्यों नहीं कहा, ज़ालिकल किताबुल ला रैब फ़ीह क्यों कहा? तो मुझे जवाब शिकवा मिलता है, वो भी इसलिए कि 14वीं सदी के सादा मुसलमान को उसके दजल, फरेब, झूठ, धोखे से बचाने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि सादा लो मुसलमान को कोई चूड़ा, कोई मरासी, कोई जिंदीक ये कहकर गुमराह कर दे कि अल्लाह ने तो ज़ालिकल कुरानुल ला रैब फीह कहा था कि ये कुरान सच्चा है, ये कुरान थोड़ा है, ये तो आम किताब है, ये तो शराबखोर खुलाफा की लिखी किताब है। अल्लाह ने कहा ताकि तुम्हें वो चूड़ा धोखा न दे सके। मैंने ज़ालिकल कुरान नहीं कहा, मैंने ज़ालिकल किताब कहा कि ये किताब सच्ची है जो तेरे हाथों में है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, अज़मत कुरान, ताजो तख्ते खत्म नबूवत, ताजो तख्ते खत्म नबूवत, नारे तकबीर। जज़ाकल्लाह, ये मेरे लिए सनद है। मैं वेला क्या नहीं गिनता, मैं आमतौर पे वेला देता रहता, लेकिन ये चूंकि हज़रत कारी साहब हैं, कुरान के खादिम हैं, हाँ बल्कि खादिम आला है, तो इसलिए मैं ये हदिया समझकर कबूल करूंगा, खर्च भी नहीं करूंगा, हमेशा अपने पर्स में रखूंगा ताकि इनसे बरकत हो। तवज्जो रहे, ये मेरे लिए सनद है। तवज्जो है तो आपको देवा चाह सारे कहीं ताड़ी बैठो उधार मैं जिगर दा खून देना खड़ा उड़ ही दे कह दो सुभान अल्लाह, गूंज के कह दो सुभान अल्लाह।
थक तो नहीं गए? हाथ खड़ा करो जो कहते हैं हम थक गए। शुक्र है सियाने थे। तवज्जो रहे, मैं बिल्कुल अभी इब्तिदा कर रहा हूँ और पता ही नहीं चलेगा मैं इंतहा करूंगा। मैं अक्सर कहा करता हूँ मेरी तकरीर बायर होती है। मैं टीचर बस वाला मुकर्रर नहीं हूँ जो थका दूं। मेरी तकरीर बायर होती है, पता ही नहीं चलता कराची आ जाता है, पता ही नहीं चलता दुबई सऊदी आ जाता है। हाँ, क्योंकि मैं बायर ले जाता हूँ। हाँ, थोड़ी देर में बहुत सारी बातें करने का आदी हूँ, लेकिन सिर्फ तवज्जो चाहता हूँ, जिंदा दिली चाहता हूँ, ज़ौक़ और शौक़ और जज्बा चाहता हूँ। तवज्जो रहे, कायनात के रब फरमाते हैं मैंने इसलिए ज़ालिकल कुरान नहीं कहा ताकि कोई ये फ्रॉड और फरेब ना कर सके कि अल्लाह ने तो कुरान को सच्चा कहा, ये तो आम किताब है, ये कुरान थोड़ा है। कुरान तो वो है जिसके 40 पारे हैं, कुरान तो वो है जो मुसफ़ अली है, कुरान तो वो है जो मुसफ़ फातिमा है, कुरान तो वो है जिसके 10 पारे बकरी खा गई। ये कुरान नहीं, ये आम किताब है। अल्लाह ने उसके दजल का पर्दा चाक करने के लिए ज़ालिकल कुरान नहीं कहा। अल्लाह तेरी हिकमत पे, कुदरत पे, ताकत पे, हिम्मत पे, सकत पे मैं कुर्बान जाऊं। अल्लाह ने 14वीं सदी के और जिंदीक का मिजाज समझा कि वो इसको बहाना बना लेगा। वो कहेगा कुरान तो हम भी मानते हैं, लेकिन वो जो घरों में छुपा पड़ा है। अल्लाह ने ज़ालिकल कुरान नहीं कहा, फरमाया ज़ालिकल किताब। उलमा बैठे पूछो ज़ालिका इसमें इशारा है, फरमाया ये किताब सच्ची है जो तेरे हाथों में है। नारे तकबीर, शान मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, नारे तकबीर। आगे चलता हूँ, आओ। तुम्हारी खामोशी और थकावट और उसको देखकर मैं मुख्तसर करता हूँ कि अगली तरफ चलते हैं। कायनात के रब ने आगे कुरान का तारुफ कराया, 3 कस्में उठाई 3 हुरूफ में, 2 जुमलों में तारुफ करा के समंदर को मुट्ठी में बंद कर दिया। 2 जुमले, पहला जुमला ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, कुरान के मायार, सदाकत, हक्कानियत आश्कारा कर दी। और दूसरा जुमला कि ये कुरान मैंने भेजा क्यों, फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, मैंने ये कुरान मुत्तकीन की हिदायत का समंदर बना के भेजा है। जो भी आएगा होता खाएगा पाक हो जाएगा। आओ फिर रब्बे कौनैन की दरबार में 10 से सवाल दराज करते हैं। अल्लाह आपने बड़ा जामे माने और मुख्तसर सा तारुफ कराया, ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। 2 जुमले कहकर अल्लाह हमें राजी कर दिया। हमें तो इस किताब का जरा मजीद भी तारुफ चाहिए। हमारी अभी तक हमारा दिलो दिमाग मुअत्तर नहीं हुआ। अल्लाह इससे भी आगे हमें इस किताब का तारुफ चाहिए। तवज्जो करना झंग वालों, अहमदपुर सियाल वालों और इस अहले इलाका वालों और सादात ये जो बैठे हैं आज कुरान के खत्म पर, अल्लाह इनके वालिद मौलाना कमरुल हसन की कब्र को कुरान की नूरानियत से मुनव्वर कर दे। अल्लाह उनके खानदान में बरकतें अता कर दे। अल्लाह उसके इस बेटे को आलिम बाअमल बनाए। पूरी तवज्जो रहे। आओ अब रब्बे कौनैन की दरबार में 10 से सवाल दराज करते हैं। अल्लाह हमें इस किताब का थोड़ा सा और भी तारुफ चाहिए। अल्लाह इस किताब का नाम क्या है, अल्लाह इस किताब का काम क्या है, अल्लाह इस किताब का शान क्या है, अल्लाह इस किताब का एहतराम क्या है, अल्लाह इस किताब का इकराम क्या है, अल्लाह इस किताब को पढ़े तो उस पर इनाम क्या है, अल्लाह इस किताब से दोस्ती करे तो उसका अंजाम क्या है, अल्लाह इस किताब का असली मकाम क्या है, अल्लाह इस किताब के साथ अगर हम उन्स रखें तो इस किताब का हमारे लिए पैगाम क्या है, अल्लाह इस किताब को भेजने वाले का नाम क्या है, अल्लाह इस किताब को लाने वाले का नाम क्या है, अल्लाह ये किताब जिससे उतरी उसका नाम क्या है, अल्लाह ये किताब जिस महीने में आई वो माह सियाम क्या है, अल्लाह ये किताब जिस रात में आई उस रात का शान क्या है। तो कायनात के रब फरमाते हैं मेरे नबी की उम्मत के लोगों, अगर तुम्हें इन सारे सवालों का जवाब चाहिए फिर मुझसे क्यों पूछते हो। आओ वुजू करो, पाक हो जाओ, मेरी किताब को उठाओ, इसे चूमो, इसे खोलो, इसमें घूमो, इसके समंदर की लहरों पे तैरो, इसमें गोते खाओ, हीरे और मोती उठाओ। तुम जो भी सवाल करना चाहते हो मेरी किताब से सवाल करते जाओ, तेरे हर सवाल का जवाब मेरी किताब दे दी जाएगी। आओ उस कुरान के दरवाजे पर चलते हैं और उस किताब के दरवाजे पे दस्तक देकर आज मैं पूछता हूँ, ए किताब तू अपना तारुफ तो करा, ए किताब तू अपना तारुफ तो करा, ए किताब तेरा नाम क्या है। पूरी तवज्जो चाहूंगा, ए किताब तेरा नाम क्या है। तो अभी वो खुद जवाब देती है, मेरा नाम पूछते हो, यासीन वल कुरानिल हकीम, मेरा नाम कुरान है, मैं हिकमत का बहता हुआ दरिया हूँ। और रहमान अल्लमल कुरान, मेरा नाम कुरान है, मैं इल्म का बहता हुआ समंदर हूँ। ए किताब तेरा नाम क्या है। तो भी वो खुद जवाब देती है, बल हुआ कुरान मजीद, मेरा नाम कुरान मजीद है, मैं मोहतरम और बुजुर्गी वाली किताब हूँ। ए किताब तू ये बता कि तेरा काम क्या है। तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरा काम पूछते हो, हुदल लिल मुत्तकीन, मेरा काम ये है
میں متقین کی ہدایت کا راہرو منزل ہوں. اے کتاب تو یہ بتا کہ تیرا احترام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا احترام پوچھتے ہو. جنگ والوں میرے جملے کو توجہ سے سن لو. دل و دماغ کے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک کو کھول کے بیٹھ لو اور میرے جملوں کو اپنے کمپیوٹر میں نقش کر کے سیو کر لو. اے کتاب تو یہ بتا کہ تیرا احترام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود بتاتی ہے لا یمسہ الا المطہرون. مجھے کوئی پلیت چوڑا نہ اٹھائے. مجھے اٹھانا ہو پہلے پاک ہو کے آنا پھر مجھے اٹھانا. نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان قرآن، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر. اے کتاب توجہ ہے؟ جن کیا کہہ دو سبحان اللہ. اے کتاب تو یہ بتا تیرا احترام کیا ہے؟ پوری توجہ اہل علم، اہل ذوق، اہل فکر، اہل نظر، اہل عمق سے. میں زیادہ اسٹیج والوں سے مخاطب ہوتا ہوں. میری باتیں ان کے لائق ہوتی ہیں، ان کے لائق کم ہوتی ہے. ہاں توجہ رکھیں. بعض اوقات نا اللہ ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیشہ چھوٹوں سے کام لیتا ہے. کبھی چڑیا سے، کبھی مچھر سے، کبھی کبوتر سے، کبھی مکڑی سے. ہاں اور لوگ بڑے جبے کبے والوں کی تلاش میں ہوتے ہیں. ہاں اچھا لمبا چوڑا ہٹا گھٹا موٹا تازہ، ہاں اس کی تلاش میں ہوتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں میرے پاس تو عطروں کے قطرے ہیں، پتھروں کے پہاڑ نہیں ہیں. میرے پاس تو چھوٹے چھوٹے ہیرے اور موتی ہیں، میرے پاس بڑے بڑے پتھر نہیں ہیں. اس لیے میں پوری توجہ چاہوں گا کہ اللہ اس کتاب سے پوچھتے ہیں اے کتاب تو یہ تو بتا کہ تیرا احترام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا احترام پوچھتے ہو لا یمسہ الا المطہرون. میرا احترام یہ ہے مجھے کوئی پلیت چوڑا زندگی ہاتھ نہ لگائے. مجھے وہ ہاتھ لگائے جو پاک ہو. پہلے پاک ہو کے آنا پھر مجھے اٹھانا. اے کتاب تو یہ بتا کہ تیرا اکرام کیا ہے؟ اگلا جملہ بھی علماء کو دینا چاہوں گا، اسٹیج والوں کو دینا چاہوں گا. اے کتاب تو یہ بتا کہ تیرا اکرام کیا ہے؟ پھر توجہ چاہوں گا. اے کتاب تو یہ بتا تیرا اکرام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا اکرام پوچھتے ہو اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. جو میرا اکرام یہ ہے جب مجھے امام پڑھ رہا ہو نا پیچھے اپنی نہ شروع کر دیا کرو، چپ کر کے مجھے سنا کرو. اے کتاب تو یہ بتا کہ تیرا اکرام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا اکرام پوچھتے ہو اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. جب مجھے پڑھا جائے پھر پیچھے اپنی فاتحہ نہ شروع کر دیا کرو، چپ کر کے ادب سے مجھے سنا کرو. اے کتاب تو یہ بتا تیرا اصلی مقام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا اصلی مقام بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. میں تو لوح محفوظ میں نقش کھڑی ہوں. اے کتاب تو یہ بتا کہ تیرا شان کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا شان پوچھتے ہو میرا شان لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. میرا شان، میرا روب، میرا دبدبہ، میرا جاہ و جلال و کمال یہ ہے کہ اگر رب مجھے پہاڑوں پہ اتار دیتا وہ بھی میری ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. اے کتاب تو یہ بتا کہ تیری حفاظت کا انتظام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میری حفاظت کا انتظام پوچھتے ہو انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. جس رب نے مجھے اتارا ہے صبح قیامت تک میری حفاظت بھی خود کرتا ہے. اے کتاب تو یہ بتا کہ تیرا دنیا کے لیے میسج اور پیغام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا پیغام پوچھتے ہو جاؤ پوری دنیا کو بتا دو ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم کہ میں ہی وہ کتاب ہدا ہوں، میں ہی وہ کتاب مبین ہوں. جو مجھ سے تعلق بڑھاتا ہے میں اسے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے اٹھا کر اور جو سریا کی بلندیوں پہ چڑھا دیتی ہوں. اے کتاب تو یہ بتا، اے کتاب تو یہ بتا اگر تجھ سے دوستی کریں، تجھ پہ عمل کریں تو اس کا انجام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میری دوستی کا انجام پوچھتے ہو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. جو مجھ سے دوستی کرتا ہے، جو مجھ پہ عمل کرتا ہے میں اس کی دنیا بھی بنا دیتی ہوں، میں اس کی عقبہ بھی بنا دیتی ہوں. اے کتاب تو یہ بتا، اے کتاب تو یہ بتا کہ تیرا وجدان کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا وجدان پوچھتے ہو، میری روح پوچھتے ہو، میرا اندر کا کمال پوچھتے ہو. شفاء لما فی الصدور، میں تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی بیماریوں کا علاج بن کر آئی ہوں. اے کتاب تو یہ بتا کہ تیرے تلاوت کا مقام و معیار کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میری تلاوت کا معیار و مقام پوچھتے ہو ورتل القرآن ترتیلا. مجھے ٹھہر ٹھہر کر مزے لے لے کر مجھے جھوم جھوم کے پڑھا کرو، مجھے ترخایا نہ کرو. اے کتاب تو یہ بتا کہ اگر تجھے تیرے بھیجنے والے کا نام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرے بھیجنے والے کا نام پوچھتے ہو تنزیل من رب العالمین. مجھے عالمین کے رب نے بھیجا ہے. اے کتاب تو یہ بتا تجھے لانے والے کا نام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی
देती है, नज़ल बिर्रूहुल अमीन, मुझे फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन लेके उतरा है। ए किताब तू ये बता तुझे लेने वाले का नाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, नुज़्ज़िला अला मोहम्मद, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा पे नाज़िल हुई हूँ। ए किताब तू ये बता तू जिस महीने में आई वो माह सियाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, मैं रमज़ान के उस मुक़द्दस महीने में आई हूँ जो सारे महीनों का सरदार महीना है। ए किताब तू ये बता तू जिस रात में आई उस रात का शान क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, मैं उस रात में उतरी हूँ जो एक रात 1000 महीनों से भी ज्यादा बेहतर है। नारे तकबीर, शान मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, अज़मत कुरान, शान कुरान, नारे तकबीर। मैं 15 मिनट बाद सांस लेता हूँ, ये चौथे नारे में अटक जाते हैं। दीवाना बेखुदी में बड़ी बात कर गया, चीखें थी जिन्हें झूम के नगमात कर गया। पूरी तवज्जो रहे, मैं आगे चलना चाहता हूँ, बड़ा मुख्तसर आगे चलना चाहता हूँ, पूरी तवज्जो रहे। तवज्जो है? कैसे है? गूंज के पता चले ना दूर दराज तक कि या अब्बासी पे अल्लाह का करम है, माहौल अब भी बड़ा गर्म है। तवज्जो है या नहीं है? मेरे दोस्तों तवज्जो रहे, बात को आगे चलाता हूँ, पूरी तवज्जो चाहूंगा, बात को आगे चलाता हूँ। बड़े लोगों ने कोशिश की, सरतोड़ कोशिश की, बड़े मैसेज चलाए, बड़ी तहरीक चलाई, बड़े प्रोपेगेंडे किए, ये हो गया, वो हो गया, ये कर गया, वो कर गया। आज उनको पूछने वाला कोई हो ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रूए जमीन पर अल्लाह ने आपके इस भाई को ऐसे डंके बजाने के लिए चुना है कि अल्लाह की तौहीद भी कायमुद्दीन अब्बासी का बेटा बनकर दुनिया में मैं सुना रहा हूँ। नबी की सीरत पे दुनिया के कई मुल्कों में जाके पहला अवार्ड जीत के आया हूँ। अज़मत सहाबा और अज़मत कुरान पे मैं पूरी दुनिया में उलमाए देवबंद की तर्जमानी करके डंके बजा रहा हूँ। लेकिन सिर्फ इतना कहता हूँ कि तेरी जुदा पसंद मेरी जुदा पसंद, अशार के पर्दे में मैं जिनसे मुखातिब हूँ वो जान गए होंगे क्या नाम लिया जाए। ओए तेरी जुदा पसंद मेरी जुदा पसंद, तुझको खुद ही पसंद मुझको खुदा पसंद। एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम कर दिया। पूरी तवज्जो चाहूंगा, आगे चलना चाहता हूँ। ए किताब तू ये बता कि तुझसे दोस्ती करें तो उसका अंजाम क्या है? तो भी जवाब मिलता है, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। जो मुझसे दोस्ती करता है मैं उसकी दुनिया भी बना देती हूँ, मैं उसकी उक़बा भी बना देती हूँ। इससे भी आगे चलते हैं। ए किताब तू ये बता अगर तुझे पढ़े तो उस पर इनाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरे पढ़ने पर इनाम पूछते हो? आओ झंग वालों तरह सुनो, आज ज़ौक़ अब्बासी के समंदर के हीरो को जरा झोली में भर के तो जाओ। उस किताब से पूछते हैं, ए किताब तू ये बता अगर तुझे पढ़े तो उस पर इनाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरे पढ़ने का इनाम पूछते हो? अगर तुम मुझे मुंह ज़बानी पढ़ो, बेन उठाए पढ़ो, बगैर वुज़ू के पढ़ो, चलते फिरते पढ़ो, मुझे छूना नहीं, मुझे हाथ लगाया नहीं, मुझे उठाया नहीं, वुज़ू किया नहीं, चलते फिरते वाक करते दुकानदारी में, तजारत में, ट्रेन में, प्लेन में, सफर में, हज़र में, कहीं भी हो और तुम्हें 2-4 सूरतें याद हैं और तुम पढ़ते जा रहे हो, मैं तुम्हें बगैर वुज़ू के, बगैर उठाने के, बगैर देखने के इस पढ़ने पर एक हरफ के बदले में 10 नेकियां दिलवाती हूँ, 10 गुनाह माफ कराती हूँ, 10 दर्जे बुलंद कराती हूँ। अगर तुम मुझे वुज़ू करके हाथों में उठाकर आंखों से देखकर पढ़ो, मैं वुज़ू की बरकत से, हाथों में उठाने की बरकत से, आंखों से देखने की बरकत से एक हरफ के बदले में 25 नेकियां दिलवाती हूँ, 25 गुनाह माफ कराती हूँ, 25 दर्जे बुलंद कराती हूँ। अगर तुम मुझे नफल नमाज में पढ़ो, मैं एक हरफ के बदले में 50 नेकियां दिलवाती हूँ, 50 गुनाह माफ कराती हूँ, 50 दर्जे बुलंद कराती हूँ। अगर तुम मुझे फर्ज नमाज में पढ़ो, मैं एक हरफ के बदले में 100 नेकियां दिलवाती हूँ, 100 गुनाह माफ कराती हूँ, 100 दर्जे बुलंद कराती हूँ। अगर तुम मुझे रमजान के महीने में पढ़ो, मैं एक हरफ के बदले में 7000 नेकियां दिलवाती हूँ, 7000 गुनाह माफ कराती हूँ, 7000 दर्जे बुलंद कराती हूँ। अगर तुम मुझे अल्लाह के घर काबे में बैठ के पढ़ो, मैं एक हरफ के बदले में 1 लाख नेकियां दिलवाती हूँ, 1 लाख गुनाह माफ कराती हूँ, 1 लाख दर्जे बुलंद कराती हूँ। अगर तुम मुझे काबे में बैठकर रमजान के महीने में पढ़ो, मैं एक हरफ के बदले में 70 लाख नेकियां दिलवाती हूँ, 70 लाख गुनाह माफ कराती हूँ, 70 लाख दर्जे बुलंद कराती हूँ। अगर तुम मुझे देख के पढ़ो, मैं नादरा खां कहलवाती हूँ,
मुझे याद करके सीने में छुपा लो तो माँ बाप समेत मैं जन्नत के ताज पहनवाती हूँ। अगर मुझे अच्छी आवाज से पढ़ लो मैं कारी कुरान के लक़ब दिलवाती हूँ। अगर मेरा माना मतलब और मफहूम को समझ लो मैं आलम दीन की दस्तार बंधवाती हूँ। अगर मेरी गहराई में उतर जाऊं तो मैं मुफस्सिर कुरान के तमगे लगाती हूँ। अगर मुझ पे अमल कर लो मैं जहन्नम से आजाद करके जन्नत का मालिक बनाती हूँ। नारे तकबीर, शान मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, अज़मत कुरान, शान कुरान, नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। कल मुल्तान साइड पे एक जलसा था मेरा, तो मुझे फरमाइश की शान सिद्दीक पे, और वो तो मेरा फेवरेट मौजू है। मैंने तो उस नाम पे मार खाई है, माल नहीं खाया। मैं उस नाम पे नौकर बना हूँ, साहबा का नवाब नहीं बना। मैंने उस नाम पे मारे खाई है। मैंने यतीमों का, बेवाओं का, शहीदों का, असीरों का माल नहीं खाया। मैंने प्रोटोकॉल नहीं बनाया, अल्लाह ने वैसे बना दिया, अल्लाह ने वैसे बना दिया। तो मैंने जब वो तकरीर शुरू की, टाइम तो आपको पता है अक्सर मैं 1 घंटा बोलता हूँ, लेकिन 2 घंटे गुजर गए, मेरा मौजू आधा ही नहीं हुआ था। मैंने हाथ बांध के जान छुड़ाई। मैंने कहा यार वही बात है, वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। मैं होता नहीं जो 7 मिनट बाद में गुस्सा चढ़ बजे है। माल जो बंदा इतना खावे 7 आपे चढ़ने, वही यतीमें दा, वही बेबगान दा, वही असीरें दा, वही शहीदें दा। हाँ मेरे दोस्तों तवज्जो रहे, बात को वाइंड अप करना चाहता हूँ। मैं अपने ज़ौक़ और अपने मिजाज का खतीब हूँ। अपने अंदाज में नबी के सहाबा के दर की नौकरी और चाकरी करता हूँ। अपने अंदाज में नबी के सहाबा को खराज अकीदत का सलाम पेश करता हूँ। अपने अंदाज में कुरान की सदाकत और हक़ानियत के मैं डंके बजाता हूँ। मुझे प्रोटोकॉल का कोई शौक नहीं है, मुझे हूटर का, मूटर का, स्कूटर का कोई शौक नहीं है। मैं तो सिर्फ कल भी नौकर था, आज भी नौकर हूँ, और अपने कफन पे भी नौकर लिखवा के जाऊंगा, और क़यामत के दिन हौज़े कौसर पे भी नौकर बन के जाऊंगा। इसलिए किसी के धोखे में ना आना। जमीयत उलमा इस्लाम का स्टेज वो जनरल जामे माने स्टेज है कि जिसमें सब कुछ अकाबर ने परो दिया। ये वो तस्बीह है जिसमें अल्लाह ने ऐसे 100 हीरे परोए कि उसमें तौहीद भी, खत्म नबुव्वत भी, अज़मत सहाबा भी, अज़मत अहले बैत भी, इस्लामी निज़ाम का निफाज भी, कुर्बानियां भी, जद्दोजहद भी, जेलें भी, रेलें भी, हथकड़ियां भी, बेड़ियां भी, शाख्ते भी, सब कुछ इसमें है। आओ जंग वालों, अहमदपुर सियाल वालों, तुम्हें भी दावत देता हूं कि इस घटाटोप अंधेरों के दौर में कायदे जमीयत, मुफक्किर इस्लाम, बतले हुर्रियत, इमाम इस्लामी इनकलाब, मौलाना फजलुर रहमान के दस्तो बाजू बनो। वो इस वक्त इस्लाम के बका का भी निशान है, उलमाए देवबंदियत का सच्चा पहचान है। नारे तकबीर, शान उलमाए देवबंद हजरत मौलाना फजलुर रहमान, कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान, नारे तकबीर। तवज्जो रहे, बात को आगे चलाता हूँ। अल्लाह ए किताब तू ये बता कि अगर तुझे पढ़े तो उस पर इनाम क्या है, तो भी जवाब मिल गया। इससे भी आगे चलता हूँ। मैं इस किताब का तारुफ सारा दिन कराता रहूं, खत्म नहीं होगा, लेकिन मैं मौजूए सुखन में एक और मोती देकर बात को किनारे लगाने चला हूं। पूरी तवज्जो मेरी तरफ कि आओ ये किताब जो आज इस बच्चे ने हिफ्ज मुकम्मल किया, मुबारक है हजरत कारी साहब को, उनके उस्ताद मोहतरम को, दारुल कुरान फैसलाबाद को। हजरत कारी साहब की खिदमत मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में डंके की चोट पे है। हाँ, उनके कंप्यूटर हाफिज हूँ या उनका हिफ्ज का निजाम हो, मेरे अपने इलाके के, मेरे अपने रिश्तेदार, बच्चे बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह दारुल कुरान का इंतखाब करते हैं हिफ्ज करने के लिए, आलम बनने के लिए, अपनी तालीम और तरबियत के लिए। मैं उन्हें गायबाना खराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह उनको करोड़ों गैब के खजानों की चाबियां अता फरमाए। जिस दिल और हिम्मत के साथ, ज़ोद और तकवे के साथ हजरत कारी साहब ने कुरान की खिदमत की है, ये भी उलमाए देवबंद का असासा है। अब ये किताब जो आज इस बच्चे ने खत्म की और अपने सीने में महफूज कर ली, ये किताब सिर्फ किताब नहीं, ये किताबे हुदा है। ये किताबे हुदा है। ये सिर्फ किताब नहीं, ये किताबे शिफा है। ये सिर्फ किताब नहीं, ये किताबे मुबीन है। ये सिर्फ किताब नहीं, ये किताबे रहमत है। ये सिर्फ किताब नहीं, ये किताबे बरकत है। ये सिर्फ किताब नहीं, ये किताबे इनकलाब है। ये सिर्फ किताब नहीं, ये किताब सरतापा सवाब ही सवाब है। जब तक ये
किताब नहीं आई पूरी दुनिया में कुफ्र था, ये किताब आई तो काफिर मुसलमान हो गए। जब तक ये किताब नहीं थी पूरी दुनिया में शिरक था, जब ये किताब आई तो मुशरिक मुवाहिद बन गए। जब तक ये किताब नहीं थी पूरी दुनिया में कुफ्र था, जब ये किताब आई पूरी दुनिया में इस्लाम के डंके बज गए। जब तक ये किताब नहीं थी पूरी दुनिया में किस्म इफ्तरा था, ये किताब आई तो पूरी दुनिया में अबू बकर सिद्दीक अकबर जैसे सिद्ध को सफा के कोहे कराम पैदा हो गए। जब तक ये किताब नहीं थी दुनिया में जुल्म जबर था, ये किताब आई तो फारूक आजम जैसे अदल के कोहे कराम पैदा हुए। जब तक ये किताब नहीं थी दुनिया में बेहयाई थी, जब ये किताब आई तो उस्मान गनी जैसे हयादार पैदा हो गए। जब तक ये किताब नहीं थी दुनिया में बुज़दिली थी, जब ये किताब आई तो अली मुर्तज़ा जैसे शुजाअ बहादुर पैदा हो गए। जब तक ये किताब नहीं थी तो उस वक्त तक अब्दुल्लाह इब्ने उमर था, जब ये किताब आई तो इब्ने उमर मुफस्सिर मुहद्दिस आज़म बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी इब्ने अब्बास था, जब ये किताब आई इब्ने अब्बास मुफस्सिर आज़म बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी इब्ने मसूद था, जब ये किताब आई तो इब्ने मसूद फकीह उम्मत बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी अबू उबैदा बिन जर्राह था, जब ये किताब उतरी अबू उबैदा अमीन उम्मत बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी मुआविया इब्ने अबू सुफियान था, जब ये किताब उतरी मुआविया कातिब कुरान बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी सलमान और अबू ज़र आम इंसान थे, जब ये किताब उतरी सलमान और अबू ज़र ज़ुहद और तक़वा के इमाम बन गए। जब तक ये किताब नहीं थी खालिद बिन वलीद था, जब ये किताब उतरी खालिद सैफ बिन सयूफ़िल्लाह बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी बिलाल हबशे का आम गुलाम था, और जब ये किताब उतरी और बिलाल ने सीने से लगाया तो उसी बिलाल को इतनी बड़ी अज़मत मिली कि वही बिलाल चलता अरब की गलियों में है, कदमों की आहट जन्नत की हूरें सुनती। नारे तकबीर, शान कुरान, अज़मत कुरान, नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, उस कुरान का शान, मैंने तो अभी कुरान का कोई एक मौजू भी शुरू नहीं किया। मैंने किया? चलो आप नहीं बताओ, उलमा बता दे। मैंने कुरान का कोई मौजू शुरू किया? मैंने किसी आयत पे तकरीर शुरू की? मैं तो कुरान के समंदर की पहली लहर की पहली बूंद को टच कर रहा हूँ। मैं तो कुरान के गुलदस्ते के फूलों की पत्तियों में से एक पत्ती को तोड़ के अभी उसकी महकें पेश कर रहा हूँ। मैं तो कुरान के आसमान के सितारों की चमक और दमक में से मैंने सिर्फ एक किरण पेश की है। तो खुद सोचो कुरान कितना अजीम और शान होगा। वो अल्लाह का कलाम, मैं उसकी अजमत पर, सदाकत पर, मेयार पर, हक्कानियत पर, उसके इत्तिफा पर सारी जिंदगी बोलता रहूं, मैं कुरान के समंदर के हीरो को खत्म नहीं कर सकता। सारी कायनात एक तरफ, अल्लाह की किताब एक तरफ। ये वो किताब है। आज मैं खराज तहसीन का सलाम पेश करता हूँ इन उलमा को, इन मदारिस के बोरिया नशीनों को, जो इस घटाटोप अंधेरों के दौर में, जुल्मतों के दौर में, जबर के दौर में, खौफ और प्रेशर के दौर में, मैं इन बोरिया नशीनों को खराज तहसीन का सलाम पेश करता हूँ, जिनको दिन रात डराया धमकाया जाता है कि मदरसों का निजाम बंद करो, लेकिन ये बोरिया नशीन अपने सर पे कफन बांध के बैठे हैं कि जिस दिन तुमने मदरसे को खत्म किया उस दिन हमें भी खत्म कर देना। जब तक हम जिंदा हैं मदरसा भी जिंदा रहेगा, कुरान भी जिंदा रहेगा। नारे तकबीर, शान कुरान, अज़मत कुरान, मदारिस दीनिया, मदारिस दीनिया, नारे तकबीर। और मैं कहा करता हूं अरबाब इक़्तिदार को, मिस्टर यूट्रन खान 6 महीने के अंदर ही परेशान, खट्टे कर दिए ना कायदे जमीयत ने तेरे दंदान। पहले कहता था मैं जाता हूं मुल्तान, अब कहता है मैं होता हूं कुर्बान। कायदे जमीयत की बसीरत को मैं लाखों सलाम करता हूं, जिसने आज से कई साल पहले निशानदेही कर दी थी। ख्याल करना, एक मखसूस एजेंडा आ रहा है। आज मैं कहना चाहता हूं कि इन बोरिया नशीनों को तंग मत किया करो, इन टूटे फूटे कच्चे पक्के मदरसे वालों को कमजोर और लावारिस न समझा करो। इनका कोई वली वारिस है, और जो इनका वारिस है ना, उस जैसा वारिस कायनात में किसी का नहीं है। कायनात में इनके वारिस जैसा किसी का वारिस नहीं।
وہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ایک بازار میں بارش کا پانی کھڑا تھا اور ایک بوڑھا بیچارہ لکڑی کے سہارے وہ بازار میں چل رہا تھا۔ اس کے قریب سے ایک جوڑا گزرا، دلہا دلہن کا، بڑے سوٹڈ بوٹڈ، ہاں لہنگے فراق لگے ہوئے، سوٹ بوٹ لگا ہوا۔ تو اس بوڑھے نے جب یوں لکڑی ماری نا اپنے راستے کے لیے، تو وہ پانی کے چھینٹے اڑے اور اس کے وہ غرارے پہ، فراق پہ، لہنگے پہ، جو بھی کہہ لو، آج کل تو کئی بلائیں ہیں، ہمیں تو نام بھی نہیں آتے، ہاں تبدیلی ہے نا، جدید دور ہے۔ تو اس پہ گرا تو اس کے کپڑے خراب ہو گئے۔ تو وہ جو ساتھ دلہا تھا نا، دلہا، اس کو غصہ لگا، اس نے اس بزرگ کو 3 تھپڑ رسید کر دیے اور وہ بزرگ بیچارہ نیچے گر پڑا۔ بس جو ہی نیچے گرا تو اس نے بس اوپر دیکھا، صرف اوپر دیکھا، زبان سے ایک جملہ بھی نہیں کہا۔ اٹھا، لکڑی سنبھالی، قریب ایک ریڑھی کھڑی تھی، جلیبیاں بیچ رہا تھا ریڑھی والا، اس نے بلا لیا، بابا ادھر بیٹھو، تمہیں گرم جلیبیاں کھلاؤں، سردی کا موسم ہے۔ اس نے بابا کو بٹھایا، 2-4 جلیبیاں دی۔ بابا نے پھر اوپر دیکھا اور دیکھ کر کہا، واہ سونا مرضی دھما لے گئی، کتہیں کٹویں دی، کتہیں کھویں دی۔ پوری توجہ چاہوں گا، میں فضول کے لطیفے نہیں سناتا، میں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان بوریا نشینوں کے وارث کا اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے اوپر دیکھا، ابھی 5 منٹ بھی نہیں گزرے ہوں گے، اسی روڈ پر، اسی گلی میں، اسی بازار میں وہ دلہا دلہن جا رہے تھے کہ پیچھے سے ایک موٹر سائیکل آیا اور اس نے ٹکر ماری، دلہے کو ٹکر لگی اور اس ٹکر میں وہ دلہا گرا اور اس کی ٹانگ 2 جگہ پہ ٹوٹ گئی، 2 جگہ پہ، اور وہ گر پڑا، بیش ہو گیا، ہائے وائے مچ گئی، سمجھ گئی کہ شاید بزرگ نے بد دعا کی ہے، بھاگی اور بزرگ کو کہا، بابا بابا معاف کر دے، معاف کر دے، تو نے بد دعا کی ہے میرے شوہر کو، میرا شوہر گر گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، بد دعا کی۔ اس نے کہا نہیں بیٹی، میں بد دعا والا ہوں بھی نہیں، میں نے تو کوئی بد دعا نہیں کی۔ اس نے کہا بابا پھر یہ کیسے ہو گیا؟ تو بابے کا جملہ سن، تیرا ایمان تازہ ہو اور تجھے ان بوریا نشینوں کے وارث کا اشارہ ہو۔ بابے نے ایک جملہ آکیا ہے، آکے جس ویلے تیرے کپڑے تے چھیٹے ہیں تیرا یار ناراض ہو گیا ہے، جس ویلے میرے منہ تے تھپڑ ہیں میرا یار ناراض ہو گیا ہے۔ تیرے کپڑے تے چھیٹے ہیں تیرے یار نو غیرت آئیے، میرے منہ تے تھپڑ ہیں میرے بھی یار نو غیرت آئیے۔ میں کچھ نہیں آکھیا، یارہ نو آکھنا نہیں پاندا، یار آپ پہ غیرت بھی کھا دیں۔ ان علماء بوریا نشینوں کو لاوارث مت سمجھنا، ان کا وارث عرش مولا کا مالک ہے، وہ بڑوں بڑوں کی گردنیں مروڑ کے رکھ دیتا ہے، وہ فرعون و نمرود و حامان و شداد و قارون کو بھی نہیں دیکھتا۔ اس نے تو اس کو بھی مزہ چکھا دیا تھا جو کہتا تھا I am weak but my chair is strong۔ بھٹو نے کہا تھا مفتی محمود کو، مفتی میرا صاحب مجھے کمزور مت سمجھنا، میں کمزور ہوں مگر میری کرسی بڑی مضبوط ہے۔ آج پوچھتا ہوں مسٹر بھٹو، where is the chair؟ کہاں گئی تیری کرسی؟ دنیا میں کسی کی کرسی مضبوط نہیں، کرسی صرف اس کی ہے جو وسیع کرسی اس سماوات کا مالک۔ شورش نے کہا تھا کرسیوں کے مقدر پہ ناچنے والوں، کرسیوں کا مقدر بدلتا رہتا ہے، کرسیوں کا مقدر بدلتا رہتا ہے۔ اے دیکھنے والے، تو دریا کی روانی پہ نہ جا، میں نے 100 بار اسے چڑھ چڑھ کے اترتے بھی ہے دیکھا، ہاں؟ اور حقارت سے نہ دیکھیں اہل ساحل اہل طوفان کو۔ کسی کو پیغام دے رہا ہوں اس شعر میں، جو آج کل قائد جمعیت نے بڑے تبرہ بازی کا بازار گرم کر کے نمک حلالی کر رہے ہیں، نمک حلالی کر رہے ہیں، ڈالروں کی، پونڈوں کی، درہموں کی، دیناروں کی، ریالوں کی، ہاں، اور وسکی کی بوتلوں کی نمک حلالی کر رہے ہیں۔ ان کو میسج دے رہا ہوں کہ آج اگر ہماری کشتی بھمر میں ہے تو پھر ہماری بھمر کو دیکھ کر خوش نہ ہونا، حقارت سے نہ دیکھیں اہل ساحل اہل طوفان کو۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساحل ڈوب جاتے ہیں، حقارت سے نہ دیکھیں اہل ساحل اہل طوفان کو۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساحل ڈوب جاتے ہیں اور کسی موج نے ڈبویا، کسی موج نے ابھارا، اسی کشمکش میں آخر مجھے ملے گا کنارہ۔ جمعیت علماء اسلام آج اگر بھمر میں ہے تو ایک دن آئے گا
इसी जमीयत के प्लेटफॉर्म में पाकिस्तान में इस्लाम का निजाम नाफिज होगा। कहो इंशाअल्लाह, सारे कहो इंशाअल्लाह। और मैं कह रहा था अरबाब इक़्तिदार, इनको लवारिस न समझो। मदरसा, तालिब, मौलवी, कुरान ये मिटाने के ख्वाब न देखो। तुमसे पहले ये ख्वाब वायसराय बरतानिया ने देखे थे, वायसराय हिंद ने देखे थे, विलियम ने देखे थे, बरतानिया मलका बरतानिया ने देखे थे। हाँ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर रखा था ना बर्रे सगीर पर, हिंदुस्तान पर, उस वक्त वायसराय बरतानिया ने ऑर्डर किया था कि मुझे बर्रे सगीर में कुरान की आवाज नहीं चाहिए, बर्रे सगीर में कुरान को मिटाओ, मदरसे और मौलवी को मिटाओ। तो उस वक्त की एजेंसियां निकली, पुलिस और फौज निकली, बिठा दे। उस वक्त की पुलिस और फौज और एजेंसियां निकली और निकलकर पूरे बर्रे सगीर में फैली। जहां कुरान मिला, लफ्जों में मिला मिटा दिया, लिखा हुआ मिला मिटा दिया, गत्तों पे मिला जला दिया, कपड़ों पे मिला जला दिया, पत्तों पे मिला जला दिया। जहां भी कुरान नजर आया या मिटाते गए या जलाते गए। पूरे 6 महीने 3 लाख फौज सिर्फ कुरान को मिटाने के चक्कर में रही। और 6 महीने के बाद वायसराय बरतानिया को रिपोर्ट दी, सर आज के बाद आपको बर्रे सगीर में कहीं कुरान नजर नहीं आएगा। वायसराय बरतानिया भी खुश हो गया। चंद महीनों के बाद वायसराय बरतानिया जब हिंदुस्तान के कैपिटल दिल्ली के दौरे पे आया और दिल्ली के एक मोहल्ले से गुजरने लगा, तो एक मोहल्ले के कच्चे मकान से उसे कुरान की आवाज आई। वो दिल मिला गया, लफ्ज़ पर अंदाम हुआ, अर्क में गर्क हुआ, पसीने में लपत हुआ, जमीन से जलजला आया, पांव से जमीन निकली और अपने दौर के चीफ कमांडर को बुलाकर कहा, ए मिस्टर इधर आओ, तुमने तो कहा था कुरान खत्म, ये कच्चे मकान से कुरान की आवाज कैसे आई? तो उसने कहा, सर अभी पता करता हूं कैसे। अंदर गए, दरवाजा तोड़ा, दीवारें फलांगी, अंदर जाके देखा एक आंखों से नाबीना बच्चा बैठकर कुरान की तिलावत कर रहा है। वो उस बच्चे को पकड़कर वायसराय के सामने लाया और हाथ बांधकर झुककर वेरी सॉरी कहकर कहने लगा, मिस्टर वायसराय आई एम वेरी सॉरी, इट इज इम्पॉसिबल, नामुमकिन है कि हम कुरान को खत्म कर सके। उसने पूछा व्हाट, व्हाई, रीजन, क्यों, किस लिए कुरान तुम नहीं मिटा सकते? इतना बड़ा इक़्तिदार, इतना बड़ी फौज, इतना बड़े वसाइल, इतना बड़ा रौब और दबदबा, कुरान एक छोटी सी किताब तुम क्यों नहीं मिटा सकते? और चीफ कमांडर के अल्फाज सुन, तेरा ईमान ताजा हो और तुझे इन उलमा की मेहनत का अंदाजा हो। उसने कहा, वायसराय हमने 3 लाख फौज के साथ 6 महीने मेहनत की, जहां कुरान नजर आया मिटाते गए, चलाते गए, लेकिन हम क्या करें, इन मौलवियों ने तो इतनी मेहनत कर दी कि नाबीना लोगों के और 10-10 बरस के बच्चों के सीनों में कुरान छुपा दिया, वहां से उठा के कैसे चलाए? लिहाजा हम शिकस्त मानते हैं कि सारी दुनिया खत्म हो सकती है, न कुरान खत्म हो सकता है, न कुरान वाले खत्म। नारे तकबीर, शान मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, शान कुरान, अज़मत कुरान, नारे तकबीर। आज हम भी वही कहते हैं, जदीद दौर के वायसराय मौला हाथ होला, इनसे मत टकराओ, ये खुद बड़े कमजोर हैं बेचारे, लेकिन लावारिस नहीं है, इनका वारिस बड़ा ताकतवर है। जाओ जाके पूछो अमेरिका से कैसे लोहे के चने चबा दिए तालिबान ने। जाके पूछो अमेरिका से कैसे आज पांव में गिरा हुआ है सुपर ताकत। नाज मत करो, अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है, अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है। अमेरिका जो अपने आप को सुपर ताकत कहता था, आज वो मौलवियों के सामने, बड़ी बड़ी पगड़ी वालों के सामने कभी हाथ बांध के खड़े हुए नजर आते हैं अदब से फरमाबरदार बच्चों की तरह, और कभी हाथ बांध के झुके हुए नजर आते हैं। इसको कहते हैं बोरिया नशीनों का वारिस, जो बड़े बड़ों को झुका देता है। लिहाजा मैं इलाका से कहूंगा कि इन उलमा का, इन मदारिस का, इनके कहे बगैर ख्याल रखा करो। ये दीन की बका के जामिन है, ये कुरान की इशाअत के जामिन है। ये जो तुम्हारे दरों पे आते हैं ना,
और तुम्हारी बड़ी मिन्नत तो खुशामद करके कहते बाजी हाजी साहब, मलिक साहब, खान साहब, बाजी थोड़ी वजह नाल ते दीन जिंदा जी। ये इनकी मेहरबानी समझा करो, ये तुम पे एहसान करने आते हैं कि तुम्हारे चंद टके, चंद पैसे, तुम्हारी गंदम का उशर, हाँ तुम्हारी कपास और गन्ने का उशर वो खुदा के कुरान पे लगवा देते हैं, वगरना पता नहीं मेलों पे लगता, ठेलों पे लगता, खुसरों पे लगता, मौत के कुओं पे लगता, सर्कसों पे लगता। इनका एहसान समझा करो कि तुम्हारी दौलत का कुछ हिस्सा खुदा के कुरान पे लगवाकर तुम्हारी बख्शिश का सामान कर देते हैं। और आज पाकिस्तान में नहीं, रूए जमीन पर मुआवजा करो। आखिरी बात करके वाइंड अप कर रहा हूं, रूए जमीन पर मुआवजा करो। अल्लाह मुझे बहुत मुल्कों में ले गया अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटी सी उम्र में। छोटी सी तो नहीं है, बादों का सटे से की दाढ़ी वाले, सफेद दाढ़ी वाले होते हैं और उनको बड़ी शर्म आती है जड़े आते हैं माशाल्लाह जी ऐसा छोटे छोटे हाथ से तो इन्होंने सुना किया होंगे चिट्ठी दाढ़ी वाले। मैं बड़ा शर्मिंदा थी, बता यार ये क्या आदत है की आदत। बहरहाल अल्लाह का करम है कि माहौल गर्म है। कह दो अल्हम्दुलिल्लाह, कह दो माशाअल्लाह। हाँ पास कर या बर्दाश्त कर, ये मैं मैसेज कन्वे कर रहा हूँ, मैसेज पास कर या बर्दाश्त कर। हाँ समझो रे, आखिरी बात कर रहा हूँ कि आज पूरी दुनिया में मुआवजा करो। अल्लाह मुझे पूरे यूरोप में ले गया, कनाडा में ले गया, अफ्रीका में ले गया, अरब में, अजम में, मशरिक वस्ता में, गल्फ में, बर्रे सगीर में, बर्रे एशिया में, बर्रे आज़म में, दुनिया घुमाई अल्लाह ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। घूम घूम के थक गया हूँ, लेकिन पूरी दुनिया में मैंने उलमा के, उलमाए देवबंद की तर्जमानी की है और मैंने अल्लाह की तौहीद, नबी की रिसालत, साहब और अहले बैत की अजमत के डंके बजाए हैं और मैंने ये तज्जिया किया है। रूए ज़मीन पे कहीं चले जाओ, आपको ईसाई मिशन मिलेंगे, यहूदी मिलेंगे, ईसाई मिलेंगे, हिंदू मिलेंगे, सिख मिलेंगे, मजूसी मिलेंगे, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मिलेंगे, दहिया मिलेंगे। मैं सबको चैलेंज करता हूँ, सिर्फ यहाँ नहीं दुनिया भर के जाके करता हूँ कि यहूदियों, ईसाइयों, बदमतों, क्रिश्चियनों, हिंदुओं, ग्रंथ को मानने वालों, गुरु नानक के मानने वालों, तौरात को मानने वालों, इंजील को मानने वालों, ज़बूर को मानने वालों, तुम अपनी यूनिवर्सिटियों पर सालाना अरबों खरबों डॉलर लगाते हो। सालाना बजट होता है अरबों खरबों डॉलर। फिर भी मैं चैलेंज करता हूं, अरबों खरबों डॉलर लगाकर पूरी दुनिया में मुझे आज न कहीं तौरात का कोई हाफिज मिला है, न कहीं इंजील का कोई हाफिज मिला है, न कहीं ज़बूर का कोई हाफिज मिला है, न कहीं ग्रंथ का कोई हाफिज मिला है, न कहीं वेद का कोई हाफिज मिला है, न कहीं कुरान का कोई हाफिज मिला है। जहां भी मुझे हाफिज मिला है सिर्फ कुरान का हाफिज मिला। ये उलमा जो चंद टके तुम्हारे जमा करके इतनी मेहनत कर गए, रूए जमीन के किसी मुल्क के किसी कोने में, किसी सूबे में, किसी जिले में, किसी शहर में, किसी कस्बे में, किसी गांव में, किसी बस्ती में, किसी मोहल्ले में चले जाओ, काबे के रब की कसम जब रमजान आता है मस्जिदें खत्म हो जाती हैं, हजारों हाफिज खाली बैठे होते हैं। ये मेरे मौलवियों की मेहनत है, ये मेरे उलमा की मेहनत है। हम खुद कफील हैं और पाकिस्तान के मदारिस को तो मैं क्रेडिट देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ कि यहाँ हमारे मुल्क में अगर किसी ने आला तालीम हासिल करनी हो, आला तालीम, तो वो यूरोप जाता है। मैं खुद भी PhD के लिए लंदन गया था, यूरोप जाता है, उधर का रुख करता है कि वहां जाओ, वहां आला तालीम है। एक यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में ऐसी नहीं कि जिस यूनिवर्सिटी में बाहर के मुल्कों के लोग आके पढ़ने आए, जी बड़ा आला तालीम का निजाम है, एक भी नहीं। यहाँ में अगर कोई आला तालीम दुनियावी लेना चाहे तो उसे यूरोप, चाइना, रशिया, अमेरिका, कनाडा उधर का रुख करना पड़ता है। लेकिन मौलवियों, दीन से मोहब्बत रखने वालों, तुम्हें मुबारक हो। जब पूरी दुनिया में अगर कोई दीन का इल्म लेना चाहता है तो फिर सारी दुनिया को छोड़कर वो पाकिस्तान का रुख करता है। क्यों? उनको पता है कि दीनी तालीम के मदारस का निजाम और नेटवर्क और मेहनत और अज़मत और बरकत वो सिर्फ पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान जिंदाबाद है जब तक कुरान जिंदाबाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद है जब तक मदारिस और इस्लाम जिंदाबाद है। सुबह कयामत तक न पाकिस्तान को कोई मिटा सकता है, न कुरान और इस्लाम को कोई मिटा सकता है। बोलो, कोई मिटा सकता है? पाकिस्तान के सिपाही हो, कुरान के सिपाही हो, हाथ खड़ा करके, हाथ दोनों हाथ खड़े करके पाकिस्तान के सिपाही हो और कुरान और इस्लाम के सिपाही हो। अगर इंडिया या अमेरिका या इस्राइल या नाटो ममालिक, दोनों हाथ खड़े रखो, नाटो ममालिक जिस तरह पाकिस्तान को तड़िया
کروں گا۔ اگر پاکستان کی طرف کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو پاکستان کی حفاظت کے لیے سرحدوں پہ پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑو گے، اپنے ملک کا دفاع کرو گے، اپنے ملک کی حفاظت کرو گے، اپنے نظریے کی حفاظت کرو گے، قرآن اور اسلام اور مدارس کی حفاظت کرو گے۔ اگر تم اس پہ پکے رہے تو روئے زمین میں قیامت تک نہ کوئی پاکستان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی قرآن اور اسلام کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں آخر میں لوگوں کو ایک اور میسج کنوے کرتے ہوئے آخری شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ ارباب اقتدار اور اپنے آپ کو بڑا تور مار خان کہنے والوں کو کہ جاؤ جا کے میرے تاباں سے کہہ دو، جاؤ جا کے میرے تاباں سے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے۔ آنے دل کو میری بات ٹچ کرے گی۔ جاؤ جا کے میرے تاباں سے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے۔ میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی۔ ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برادران اسلام تشریف رکھیں۔ اب حافظ قرآن جناب سید محمد شمس الملک شاہ صاحب کی دستار بندی ہوگی۔ سید حسین احمد شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی خدمت میں التماس کروں گا کہ اپنے دست شفقتوں سے اس بچے کو دستار بندی سے نوازیں اور اپنی شفقتوں سے دعاؤں کے ساتھ نوازیں۔ ابھی انشاءاللہ نماز ہوگی دعا کے بعد، اور اس کے بعد انشاءاللہ خیرات کا اہتمام ہے۔ تمام حضرات سے التماس ہے کہ وہ براجمان رہیں، نماز بھی ادا کریں، اس کے بعد انشاءاللہ خیرات بھی تناول فرمائیں۔ اور میں اپنی مقامی انتظامیہ سے بھی ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہمیشہ دینی پروگراموں کے انعقاد میں اپنی قانونی معاونت بھی فراہم کرتے ہیں، سیکورٹی بھی فراہم فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ تمام علماء اکرام کا، آپ تمام شرکاء جلسہ کا بھرپور اور تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بچے کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو حافظ قرآن اور قاری قرآن بنائے۔ اب دعا ہوگی۔ العالمین اس کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تو فیض تمام امت تک پہنچا میرے مولا۔ خاص طور پہ یا اللہ حضرت سید قمر الحسن شاہ صاحب کی قبر کو منور فرما، آباد فرما۔ یا اللہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، اے اللہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ اے الہ العالمین ان کے گھرانے اور خاندان والوں کو یا الہ العالمین اپنی سرپرستی میں قبول فرما، اپنی سرپرستی میں قبول فرما۔ اے اللہ ان سے خیر کے کام نصیب فرما، خیر کے کاموں سے نصیب فرما، ان کو خیر والے کام نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ان کی نسلوں کو آباد فرما، الہ آباد فرما۔ مجمع میں جو بیٹھے ہیں یا اللہ ان کی حاجتیں آپ جانتے ہیں بہتر، یا اللہ ان کے ہاتھوں کو قبول و منظور فرما۔ جو گھروں میں بچیاں جوان ہیں ان کو جوڑ کے رشتے عطا فرما، جن کے ہو چکے ان کو آباد فرما، اولاد صالحہ عطا فرما۔ الہ العالمین یا میرا مولا مجمع میں جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ ہمارے والدین جس دنیا سے چلے گئے ان کی بخش فرما، اساتذہ اکرام کی بخش فرما، یا اللہ پیر و مرشد کی بخش فرما، تمام امت مسلمہ کی بخش فرما۔ اے الہ العالمین یہاں جو مولانا یحییٰ عباسی صاحب نے تقریر کی ہے یا اللہ اس کے ہر بول کو قبول و منظور فرما، ہر بول کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ اس میں جذبات نصیب فرما، اے اللہ پورے جذبات نصیب فرما۔ اے الہ العالمین اثر بھی نصیب فرما، ان کی تقریر میں اثر نصیب فرما۔ الہ العالمین ان کو خوشیاں اور خوشحالیاں عطا فرما، یا اللہ سب کو یا اللہ خوشیاں اور خوشحالیاں۔ میرے فخر کو یا اللہ فخر والا بنا، الہ العالمین فخر کو فخر والا بنا۔ الہ العالمین ان کے خاندانوں کو عزت عطا فرما، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مجمع کی پریشانی اللہ کم مانگا ہے اپنی شان کے موافق زیادہ عطا فرما، مانگنا نہیں آتا بن مانگی عطا فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔